in each and every country, you have a proper regulation law which is binding on the citizens of the country and the companies too. तो हर country में एक law होता है and laws are binding on the people. जैसे laws are binding on the people and people are supposed to adhere and follow the given laws. उसी तरह similarly in the business scenario, there are certain rules and regulations which the businesses are supposed to adhere and follow, and those rules and regulations are binding on the business. Hope I am audible. Right? So herein we are basically uh, uh, making an effort to understand in each and every domain and in each and every area and sphere. Whether you establish a company, you need to register it under MCA, Ministry of Corporate Affairs. There are also rules and regulations for you that which company, in what capacity can be a private limited company, a public limited company, maybe a partnership firm, LLP, that is LLP, Limited Liability Partnership, private limited, public, one person company. So for each and every status, you need to adhere certain laws and regulations. In the same manner, what kind of company you are operating, what kind of products you are producing, what kind of services you are offering, whether you are working in national capital, whether you are working in national region, or you are globally working internationally. In each and every domain, you need to have certain uh, there are certain laws and regulations and rules which you need to follow. You need to follow certain rules and regulations. So here in emerging business law, we are starting with different concepts which are there in the company. You might have heard of copyrights. You might have heard of trademarks. You might have heard of different names of the companies which are unique for them, and no one is allowed to copy it. So in this, these these collectively, these are the property for which there are proper rules and regulations in India. So these are termed as intellectual property. Intellectual property. There is one property which is a house, a car. These are physical property which you can touch and see. But there are certain properties which are not tangible, which you cannot see and touch. But these are termed as intellectual property. So copyright is a part of intellectual property. Trademark is a part of intellectual property. Fine. So how it works? What is the concept of intellectual property laws in India, and what altogether is intellectual property? So any artistic design, any artistic work, any literary work, any unique invention, any particular specific name, symbol, images, which is used in commerce, trade, and business, is your intellectual property. Let's say I am a composer, a writer of a book. I have written, composed a book. Now, this book is a copyright for me, and no one is allowed and permissible to copy the book without my or the section, a particular the entire book or a part of the book. No one is allowed to copy it, as it is the copyright of my me. And in case if I authorize a publisher or publishing house to copy it, it is legal. But without my consent, no one is allowed to copy the entire book or a part of the book. This is copyright. In the same way, Reliance, Tata, they have proper name and trademark. These trademarks should not be copied. In case if anyone or any company, any individual copies the trademark name and maybe or might be flourishing their business in their trademark and name, it is an offense. It is a criminal offense.
Fine. So this is intellectual property. So for all the business, whether the business into writing literature, the business is into writing books, the business newspapers, journals, magazines, the business production of automobile, the business is into production of unique medicines or products, the business is into like development of a particular architect or building. So everything can be like of such nature, which is a design, which is a literary content, a unique invention, which is a symbol, name, image for used for trade and commerce and business can be intellectual property. There are many participants right in the class. I am pretty sure many among you must be having iOS, iOS software right in Apple phones. I'm very sure that most of the people, or might be 30% of the entire crowd, might be using Apple. Manoj, do you wish to ask any question? So less or more, we have more than 80 people at this point of time. So I'm pretty sure that might be many of you among all using Apple. Apple, I'm talking about Apple. अच्छा हिंदी में एक्सप्लेन इन हिंदी. अच्छा, मैंने ये कहा कि मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है. जैसे हमारे घर की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम रहते हैं, वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंग्लिश वर्ड है. प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कोई भी ऐसा प्रेमाइसेस जो आपका होता है वो प्रॉपर्टी है. इंटेलेक्चुअल क्या होता है? इंटेलेक्चुअल क्या होता है? वो चीज दिमाग से निकलती है, वो चीज आपने दिमाग से बना सकते हो, अपने इंटेलेक्ट से बना सकते हो, तो वो प्रॉपर्टी आपकी इंटेलेक्चुअल होती है. जैसे कि आप एक दिन आपका ख्याल आता है और उस ख्याल में आप बैठे बैठे बहुत अच्छी फोटोग्राफ बना देते हो, वो फोटोग्राफ आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एक दिन आपको ख्याल आता है और आप बैठकर बहुत अच्छी पोएम लिख देते हो और एक किताब लिख देते हो, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. एक दिन आपको ख्याल आता है और आप बैठकर एक बहुत गाड़ी का शानदार डिजाइन बना देते हो, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एक दिन आपको ख्याल आता है और आप उस दिन बैठकर एक बहुत बेहतरीन और खूबसूरत घर का आर्किटेक्ट बना देते हो, आर्किटेक्ट यानी कि उसका नक्शा, स्ट्रक्चर, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. तो वो चीजें जो आप आपके इंटेलेक्ट से जो निकलती हैं, जो इंटेलेक्ट से रेज होती हैं, ग्रो करती हैं, वो एक इंडिविजुअल की या कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है. कंपनी की क्यों हो सकती है? भाई कंपनी इंसान चलाते हैं, इंसानों की कंपनी होती है, और इन कंपनी हम चलाते हैं, इंसान चलाते हैं. तो हमने वो बनाया तो मैं अपने नाम पे उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रख सकता हूँ. या मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या वन पर्सन कंपनी हो, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, मैं उसके नाम पे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सकता हूँ. ये मैंने बताया. ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. यानी कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है. जैसे कि अपने गाड़ी का बहुत अच्छा नक्शा बना दिया, घर का नक्शा बना दिया, एक बहुत अच्छी किताब लिख दी, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ टर्म आते हैं, जैसे कि कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, पेटेंट आता है. कॉपीराइट यानी कि मैंने ये किताब लिखा, ये बनाया, और उस पे सी और ऐसे सर्कल, सी और सर्कल. कितनी भी किताबें, पेंगिन पेंगिन इंडिया की उठाकर देख लो, टाटा मैग्रो हिल की उठाकर देख लो, एस चांद की उठाकर देख लो, सुल्तान चंद की उठाकर देख लो, रणवीर सिंह, कोई भी उठाकर देख लो. जब तुम उसे उठाकर देखोगे, पढ़ोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उस बुक के पीछे और फ्रंट पेज पे सी लिखा होगा और एक सिंबल होगा. उसका मतलब है कि वो कॉपीराइट है, यानी कि उस बुक को इंटायरली यू आर नॉट अलाउड टू कॉपी, and even you are not allowed to copy a part of the book unless or until the publisher, the authorized publisher or the writer allows you or permits you. ये कॉपीराइट है. ट्रेडमार्क क्या होता है? टाटा का एक ट्रेडमार्क है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का एक ट्रेडमार्क है, रिलायंस का एक ट्रेडमार्क है. इस ट्रेडमार्क को मैं यूज करना चाहता हूँ. कल को मैं सोचता हूँ कि टाटा के नाम से अपना नमक बनाना शुरू कर देता हूँ, और कल मैं सोचता हूँ कि मैं टाटा के नाम से बेचूंगा. क्या फर्क पड़ता है? TATA. अब ऐसे भी तो टाटा बोलते हैं, टाटा जा रहे हैं, जा रहा हूँ बाय. हमको लगता है टाटा एक वर्ड है, एक 4 लेटर से मिलके बना है, और अल्फाबेट तो इंग्लिश में 26 लेटर है, इसमें किसी की अथॉरिटी नहीं है, जो चाहे यूज कर सकता है. या गुप्ता, प्लीज एक्सप्लेन in both language English and Hindi. I will make sure that I try to reach out to you in English and Hindi bilingual. Not a problem. तो मैं देखता हूँ कहाँ तक कर सकता हूँ हिंदी इंग्लिश. तो मैंने ये कहा मैं क्या बोल रहा था. तो जैसे टाटा एक नाम है, तो आप उसको नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दैट पर्टिकुलर नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और वो ट्रेड मार्क है, TRAD, ट्रेड, MARK, मार्क, वो मार्का, वो मार्क, मार्का हिंदी में मार्क, जिससे आप ट्रेड करते हो. तो बहुत यूनिक नाम होता है ट्रेड मार्क को, यानी कि
ट्रेड करने का मेरा मार्क है, यानी कि वो मार्क अगर भी ऐसे, ये मार्क है, ये मार्क है, कोई भी मार्क, आप उसको नहीं यूज कर सकते। एक मामूली सा अगर ऐसा मार्क भी, सपोज कि मैंने ऐसे कैसे, फोक्स वैगन, क्या होता है, डब्ल्यू होता है, फोक्स, डब्ल्यू लिखा होता है, व्हीकल, ऑटोमोबाइल, इट इज फोक्स वैगन। आप लेकिन डब्ल्यू नहीं बना सकते। कल को आप चाहते हो कि अपनी गाड़ी में स्टार बक्स, आप अपने अपने हिसाब से आप नहीं कर सकते। तो व्हाट्सएवर, तो ये है ट्रेडमार्क। तो ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। मैं बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ कि इंटेलेक्चुअल क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या चीजें आ सकती हैं। डिजाइन आ सकता है, लिटरेरी वर्क आ सकता है, बुक आ सकता है, कोई क्रिएटिविटी आ सकती है, कोई लिटरेचर आ सकता है, कोई सिंबल आ सकता है जो आपके दिमाग, इंटेलेक्ट से निकला है। इसलिए वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी किसी किताब को कॉपी करके अपनी किताब बना लेना, ये चोरी है, ये क्राइम है, ये वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है। ये अभी अब आप में से बहुत से पीपल माइट बी यूजिंग एप्पल एंड्रॉइड फोन, एप्पल iOS phone, actually iOS. So I wanted to let you know that the moment Apple was into Apple is still into research and development process, and every year and every month and every decade down the line, Apple is enhancing, upgrading its technology, and is the most fastest acceptable growing market it has altogether across the world. अब एप्पल में when it was in the process of research and development, so they developed the idea, and in the research and development, they have given and added a new and unique feature right in the photographs gallery application, गैलरी एप्लीकेशन, फोटोज होती है, फोटोज एप्लीकेशन। तो अगर आप फोटो क्लिक करते हो, तो आफ्टर क्लिकिंग द फोटो वाया द एप्पल फोन, in case if you wish to zoom in or zoom out, you are able to do it with Apple, और फोन में नहीं होगा। जूम इन मतलब नहीं होगा, कहने को नहीं होता था। तो एप्पल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ जूम इन एंड जूम आउट राइट इन द गैलरी विद द फोटोग्राफ्स। हो गया। फिर एप्पल वेंट इनटू इंटरनेशनल कोर्ट, और इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के बाद, पेटेंट एक वर्ड होता है, PATENT, पेटेंट, PATENT, पेटेंट का प्लूरल होता है PATENTS, पेटेंट्स। पेटेंट नेशनल लेवल का भी हो सकता है, और पेटेंट इंटरनेशनल लेवल का भी हो सकता है। जब एप्पल ने इतना यूनिक फीचर बनाया कि मेरी फोटो को जूम इन जूम आउट कर सकते हो फोन में, और मोबाइल की नहीं कर सकते, तो एप्पल फोन ने इंटरनेशनल कोर्ट में इंटरनेशनल पेटेंट फाइल किया फॉर अ डिकेड, कि 10 साल तक ये टेक्नोलॉजी मैंने बनाई है, ये रिसर्च मैंने किया था, तो आई वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द रिसर्च, आई वांट टू मेक बिजनेस एंड मनी, and no company across the world and globe is allowed to copy this tool of zooming in, zooming out, right with the photos in the gallery. 10 साल तक अगर कोई भी इस काम को करता, तो कंपनी एप्पल उसकी बंद करा के सारा पैसा उससे ले लेती, पेनल्टी। फिर 10 साल हो गए, तो फिर एप्पल सोचा कि फिर इसको फिर इंटरनेशनल पेटेंट ले लेते हैं, क्योंकि अगर दूसरी कंपनी, पैसा मैंने लगाया है, रिसर्च मैंने करा है, सब यूज करना चाहेंगे। फिर दोबारा जब उसने इंटरनेशनल पेटेंट के लिए फाइल किया, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, और वो रिजर्व नहीं रहा। तो आप 10 साल बाद उसका पेटेंट खत्म हो गया। इसीलिए हर फोन में आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो फोटो ले। लेकिन अगर इंटरनेशनल पेटेंट अगर मेंटेन रहता, एप्पल का एक्सेप्ट हो जाता पेटेंट, तो आप एप्पल के सिवा किसी फोटो को जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते। तो पेटेंट ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है एप्पल की, पेटेंट। उसी तरह बहुत सारी अब नहीं रही, मतलब अब उसका पेटेंट नहीं रहा। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसी यूनिक चीजें बना देती हैं, जो उनका इंटरनेशनल पेटेंट बन जाता है। फिर वो दूसरी कंपनी उस चीज को नहीं ले सकती है, नहीं कॉपी कर सकती, और इस तरह कंपनीज जो है बैरियर क्रिएट कर देती हैं उस मार्केट में। दूसरी कंपनी ऐसी एडवांस चीज बना दी कि दूसरा बना ही नहीं पाएगा, और उसको लीगली इंपोर्ट भी करा लिया कि आप कॉपी नहीं कर सकते। पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, वो पीपीटी विजिबिलिटी। तो ये है। नेक्स्ट।
इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में आई जो जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉ था वो ब्रिटिश से, और आज भी ब्रिटिश से ही इन्फ्लुएंस है और पहले भी ब्रिटिश से ही इन्फ्लुएंस था। ठीक है। लेकिन अभी हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में बहुत सारे मॉडिफिकेशन और चेंजेस भी किए गए हैं। इंडिया क्या है, डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, WIPO का मेंबर है, पेरिस कन्वेंशन कन्वेंशन का मेंबर है, और ये सारी बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज हैं, और ये सारी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पेटेंट को रेगुलेट करती हैं। करेक्ट। मॉडर्न आईपी फ्रेमवर्क क्या अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, नॉर्मल सी बात है। एम्फासिस ऑन इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क बताया मैंने। अब ट्रेडमार्क एक्ट क्या है, 1999 में बना था। इसका काम क्या होता है, बस ये काम होता है कि आपको अपनी कंपनी खोलनी है, उसका एक नाम रखना है, एक लोगो सिंबल बनाना है। हाँ जी, एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई ऑडिबल टू यू, रितेश, रिति शेख। एम आई ऑडिबल टू यू, रिति शेख। या आपको क्या करना है, आपको अपना नाम बनाना है भाई, रिति शेख नाम से कंपनी खोलनी है। ठीक है। आप जाते हो अपना लोगो बनाते हो, एमसीए में चेक करते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट। उस नाम को किसी ने नहीं लिया है, आप कर लेते हो, वो आपका ट्रेडमार्क हो गया। अब आपने कर लिया, दूसरा नहीं ले सकता। जैसे कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, एक ट्रेडमार्क हो गया, एक यूनिक नाम, दूसरा कॉपी नहीं कर, है ना। Am I audible to others? Can anyone confirm? Am I audible? I'm all ears. What do you mean by this? चलो, तो मैं ये आपको बता रहा था। या ब्रांड नेम, लोगो, सिंबल, ये सारा आपका ट्रेडमार्क, ये सब उसमें आता है। 10 साल तक आप उसको ब्लॉक कर लेते हो, और उसके बाद फिर आप उसको रिन्यू करते हो। ये है। ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, आपको एप्लीकेशन फाइल करना होता है, फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है। उसके बाद आपका वो जो है एग्जामिन किया जाता है इस नाम से कोई दूसरा है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एमसीए में जाके अपना टाटा नाम से बुक कर सकते हो, टाटा नाम से अपना ट्रेडमार्क करा लोगे आप, ऐसा नहीं होगा। टाटा ऑलरेडी है। तो एमसीए का ये भी काम है, और अथॉरिटीज और बॉडीज का ये भी काम है, ऑलरेडी जो हो चुका है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उसको कोई कॉपी करने की कोशिश नहीं करे, ना करे। करेक्ट। चलो, कॉपीराइट एक्ट 1957 अमेंड हुआ था 2012 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अथॉरिटी है। क्या क्या इसमें आप कर सकते हो, कोई लिटरेचर हो, आपका बुक हो, कोई ड्रामा हो, कोई म्यूजिकल। अब जैसे मैंने कोई म्यूजिक बनाया बहुत यूनिक, वो कॉपीराइट है। कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई फिल्म है, कोई सॉफ्टवेयर है, साउंड रिकॉर्डिंग है, कोई डिजाइन है, कोई सिंबल है, एनीथिंग। अब जैसे हम आगे बात कर रहे हैं, जैसे दार्जिलिंग टी,
बनारसी साड़ीज। अब दार्जिलिंग में जो चाय की पत्ती दार्जिलिंग, बनारस में जो साड़ी बन रही है बनारसी। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस और प्रेफरेंसेस के बेसिस पर भी बहुत सारे आपके जो है कॉपीराइट हो सकते हैं। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक्सप्लेन मैंने सब कुछ कर दिया है रिलेटेड टू पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कुछ बेसिक चीजें दी हुई है, तो आप एक बार देख लो, पीपीटी शेयर्ड है, आप खुद देखो। मैं आपको आई डिमांड योर अटेंशन दैट यू गो थ्रू दिस स्लाइड, स्लाइड नंबर 8। क्या है लॉ डिजाइन एक्ट 2000 है, क्या आपका सेफ गार्ड करता है, एस्थेटिक शेप पैटर्न कॉन्फ़िगरेशन अप्लाइड टू एन आर्टिकल। कोई खास ये नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा खुद व्यू करो। ये बेसिक चीजें हैं, आप खुद व्यू करें। और जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, एक नाम है, अगर in case if you have notebook, then it is also advisable and suggested that you should pen down many of things which are there. I am speaking right now face to face, which is not a part of the PPT. सब कुछ पीपीटी में ही होता, तो पीपीटी आपको फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन चलो कुछ कम्युनिकेशन भी तो हो रहा है, तो ऐसी चीजें शायद सुनने में आ रही हूँ, पीपीटी के बियॉन्ड है। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, पीसीटी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। अ पेटेंट filed under the Patent Cooperation Treaty can be used to seek patent protection in multiple countries simultaneously. इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी है पीसीटी। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में चले गए, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में चले गए, इंटरनेशनली आप पेटेंट ले सकते हो। ईपीओ, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में क्या होता है, आप यूरोप की जो कंट्रीज हैं उसमें पेटेंट ले सकते हो, सिर्फ यूरोप की कंट्री। आईपीटी, इंटरनेशनल पेटेंट इन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या कर सकते हो, एप्पल है, गूगल है, सैमसंग है, इनके इंटरनेशनल पेटेंट होते हैं, स्मार्टफोन बना रहे हैं, एआई बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो अपना इंटरनेशनल पेटेंट इन टेक्नोलॉजी, क्यों? क्योंकि इनका जो कंपनी का जो कोर एक्टिविटी है वो टेक्नोलॉजी है, तो ये आईपीटी में जाते हैं, इंटरनेशनल पेटेंट्स इन टेक्नोलॉजी। उसी तरह फार्मास्यूटिकल पेटेंट भी होता है, पेटेंट्स फॉर मेडिसिन, वैक्सीनेशन, वैक्सीन, कैंसर ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स। करेक्ट। तो मैंने दवा की कंपनी बहुत बड़ी बना रखी है, फॉर अबाउट हेल्थ केयर, रैनबैक्सी, सिप्ला, है ना, और अदर फार्मा कंपनीज जो हैं, तो मैनकाइंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने कोई बहुत बेहतरीन वैक्सीनेशन दवा बना रखी है, तो मैं फार्मास्यूटिकल पेटेंट में जा सकता हूँ। करेक्ट, ये आपको इंटरनेशनली उस पर्टिकुलर दवा के इंग्रेडिएंट को पेटेंट कर देगी, दूसरा कोई नहीं बना पाएगा। ठीक है। डिजाइन पेटेंट होता है, जैसे नाइकी इज द कंपनी, एडिडास इज द कंपनी, बाटा इज द कंपनी, एंड मेनी मोर इनटू शूज एंड अदर कपड़े में वैन ह्यूजन इज अ कंपनी, ज़ोडियाक एंड एवरीथिंग। तो उनका डिजाइन पेटेंट है वो, उसने अपना शू बना दिया एक पर्टिकुलर डिजाइन का,
एक पर्टिकुलर डिजाइन का कैप बना दिया, है ना, और एक पर्टिकुलर डिजाइन का कुछ बना दिया। हाँ, एक बहुत ही यूनिक जो है कोड बना दिया कुछ, तो वो डिजाइन पेटेंट में जाएगा। और सॉफ्टवेयर पेटेंट, जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, आईबीएम है, इस तरह की जो कंपनीज है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती रहती हैं, सॉफ्टवेयर पेटेंट भी जा सकती हैं। आर यू गेटिंग इट? अभी जो मैंने पीपीटी स्लाइड दिखाई है, ये आप खुद देखो, जो इम्पोर्टेंट है साथ में बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ, जिससे आपका एक मोराल हाई रहेगा, आप मोटिवेटेड रहोगे, और आपको एक्चुअली पता चलेगा कि चलो ये चीजें जो मुझे दिख रही हैं, इसमें भी पेटेंट हो, ये सारी चीजें तो मुझे आसपास दिख रही हैं जमाने में, दुनिया में। अरे इसमें भी पेटेंट है, इसमें भी पेटेंट है, इसमें भी पेटेंट है, आपको ऐसा लगेगा। पहले मैंने बता दिया आपको, मुझे पता नहीं हाउ मेनी अमंग यू were aware of this fact that Apple has developed this technology of zoom in and zoom out right in the photos of the gallery, and it was a patent for a decade, that is 10 years, and then later the international patent was not accepted. Then other companies like MI and Samsung and Nokia and etc. etc. and Motorola adopted this technology. मुझे पता नहीं आपको पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये जूम इन जूम आउट जो था, ये एप्पल का ही पेटेंट था और एप्पल का ही बनाया हुआ था। अब जैसे आप, अब ऐसे ही आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। जैसे कि आपको एप्पल की, आपने स्मार्ट वॉच सुनी होगी, तो एप्पल की स्मार्ट वॉच सुनी होगी, उसमें हार्ट रेट, आपका क्या हार्ट रेट है, दिल कितना धड़क रहा है आपका, हार्ट रेट वो मॉनिटर कर सकते हैं। जेस्चर रिकॉग्निशन उसमें है, जेस्चर रिकॉग्निशन। हार्ट रेट आपका मॉनिटर कर सकता है, वो आपका जेस्चर रिकॉग्नाइज कर सकता है ना। ये एप्पल का पेटेंट है। एप्पल वॉच जिन्होंने देखी होगी, जिन्होंने ली होगी, या जो भी व्हाट्सो एवर, हर चीज लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ, हमें पेटेंट पे ध्यान देना है कि पेटेंट क्या क्या चीजें हैं, और बस उस चीज को समझना है। फाइजर का नाम सुना होगा आपने, फाइजर मेडिसिन जो है वैक्सीनेशन जो है वैक्सीन बनाती है। उसने 2019 में जो कोविड वैक्सीन थी उसको पेटेंट कर लिया था इंटरनेशनल लेवल पर। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पेटेंट कर लिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, टेस्ला हैज पेटेंट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग टेक्नोलॉजी। चार्ज करने वाली उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो पेटेंट है। सैमसंग ने जो फोल्डेबल फोन बनाया, उसने उसको पेटेंट कराया, गैलेक्सी फोल्ड स्मार्टफोन। गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटेंट है, और गूगल की मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी भी पेटेंट है। करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। फाइन, स्लाइड इज ऑलरेडी फिनिश्ड, आई विल एक्सप्लेन यू।
अब हम क्यों ये कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट हम क्यों करते हैं? इसका रीजन होता है कि एक इंडिविजुअल अपने प्रोसेस को बचा सके, अपने बिजनेस को बचा सके, अपनी मशीन्स को बचा सके, अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को बचा सके। हमने क्या कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन यूज किया है वो मैं बचा सकूं, कि मेहनत मैंने करी है, रिसर्च मैंने करी है, रिसर्च में मेरी कॉस्ट आई है ना, उस किसी चीज को रिसर्च करने में कॉस्ट आती है, उस चीज को मैं जब मैंने बनाया है तो उस चीज को मैं बचा सकूं। Fine। तो इस तरह से इस ओवरऑल जो अभी हम लोगों ने बात करी, इसको हम जो है एग्जाम्पल से रेफर करते हुए समझेंगे, और हम लोगों ने काफी कुछ समझा भी। तो ये जो है काफी लाइक इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल लेवल पे जब बिजनेस होता है तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि आज का जो मॉडर्न टाइम है वो सारा जो है वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ज़्यादातर कंपनीज चाहती हैं कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लूँ और उसको पेटेंट कर लूँ कि वो सारी कंपनीज के लिए एक बैरियर क्रिएट कर दो। टेक्नोलॉजी से लोग बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब एक कंपनी है जो है 50% मार्केट जिसने एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कैप्चर कर रखा है, 50%, और 50% बची हुई मार्केट जो है दूसरी कंपनीज पे ना। अब वो कंपनी चाहती है कि मैं 100% मार्केट कैप्चर करूँ। तो 100% मार्केट कैप्चर करने के लिए वो सोचती है कि मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लूँ, 10 साल, 15 साल, 20 साल पैसे खर्च कर कर, 20 साल लगे, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी में बना लूँ कि उस टेक्नोलॉजी को कोई दूसरा कॉपी करने का कैपेबल ना। इससे मैं बैरियर क्रिएट कर, बैरियर कंपनी क्रिएट कर देगी। अब 20 साल उसने लगाए और एक टेक्नोलॉजी बनाई। अब जब बन गई टेक्नोलॉजी तो वो कंपनी इतनी आगे निकल जाएगी कि दूसरी कंपनी उस टेक्नोलॉजी को बनाने में ही उसे बहुत टाइम लग जाएगा दूसरी। और ये अपने फीचर्स को दिखाकर और कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत इनहेंस कर जाएगी। नहीं, बहुत इनहेंस कर जाएगी। इसलिए लोग पेटेंट और ट्रेडमार्क और ये सारी चीजें कराते हैं, कॉपीराइट कराते हैं, और गवर्नमेंट इसकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पूरी पूरी परमिशन और इजाजत देती है कि आप करें। अब हमें नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ना होगा वो मैं चेक करके आपको बता देता हूँ जस्ट। Shashi, I get copyright notice last month for sharing a 20-second clip of a movie on my account। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है कि शशि ने अभी लिखा है मैसेज में, 858 पे शशि ने मैसेज किया है कि उन्होंने पर्टिकुलरली मे बी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी कोई वीडियो, अपनी एक वीडियो बनाई होगी और उसके साथ कोई एक दूसरे कॉम्पोजर की वीडियो लगा दी होगी, तो उनके ऊपर कॉपीराइट इश्यूज आ गए। रिया, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट आप याद रखना। इसको हम लोग आगे जैसे प्रोसेस करेंगे ना, तो हम उस चीज को कवर करेंगे।
से देखा हूँ। अच्छा, एक एक इसमें आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 1450, 1450 अप्रोक्स, 1450 वहां से पेटेंट का कॉन्सेप्ट निकल गया था। यानी अभी हम 2025 में है, कुछ 1450 की बात कर रहा हूँ, 1450। ऑलमोस्ट 1450 से कुछ पेटेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था। नहीं, ऋतिशेख, आपने लिखा है इफ आई एम अ स्मॉल ब्रांड ऑपरेटिंग विद इन द लोकल बॉर्डर और स्टेट बॉर्डर, कैन आई यूज अ कॉमन नेम फॉर अ ब्रांड, ब्रश, मिस्टिक, होममेड, एटसेट्रा? इन दिस ऑल्सो विल आई फेस लीगल इश्यूज? जो बिल्कुल जनरल कॉमन नेम होते हैं, जनरलाइज जो वर्ड्स होते हैं, जनरल वर्ड जो होते हैं, चाहे वो नाउन के फॉर्म में हो या एडजेक्टिव के फॉर्म में हो, उसके बेसिस पे आप जो है ट्रेडमार्क नहीं कर सकते हो। हाँ, आप ऋतिशेक होममेड, ऋतिशेक फ्रेश, ऋतिशेक मिस्टिक, अगर आप इस तरह नॉमेनक्लेचर करते हो तो पॉसिबिलिटी है। आप बिल्कुल अपफ्रंट एक होममेड जैसा नाम लेकर आ जाते हो जो कि बिल्कुल कॉमन नाउन है, मिस्टिक, फ्रेश, उसके साथ अगर आप कुछ रखते हो तो वो आप कॉपीराइट, ये ट्रेडमार्क ले सकते हो। लेकिन बिल्कुल एक जनरल नाम जो होगा, क्लॉथ, अब मैं कल आया मुझे कपड़े बनाने हैं, क्लॉथ। दाल, कल को मुझे बाइक बनानी है, बाइक, कार, कार प्राइवेट लिमिटेड, तो आप नहीं कर सकते। ऑटोमोबाइल आप नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ आप कोई नाम रख सकते हो, बजाज ऑटो इंडस्ट्रीज, है ना, ऋतिशेक कार कंपनी, बहुत कुछ आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल जनरल नेम इन नेचर है, जो बिल्कुल एक कॉमन नाउन है, एक बिल्कुल एडजेक्टिव है, गुड है, बैड है, वर्स्ट है, ठीक है ना, और अगर आपको एग्जाम्पल दिखेगा भी तो आप देखना उसके साथ में एक नाम हो। कोचिंग क्लासेस, उसके साथ में एक प्रॉपर नाम होगा। फिक्स फ्लाइट दिखाऊं, दिखा देता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि ऑलमोस्ट 1450 लेस और मोर से पेटेंट शुरू हो गया था।
और 1450 लेस और मोर से वो सफर जो कहते हैं वो तय होते हुए पेटेंट के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस और बॉडीज बन गए। करेक्ट। और अब पेटेंट कितने लेवल पे हो सकता है वो मैंने अभी एक्सप्लेन करा है। अच्छा, पेटेंट जो है वो स्टार्टअप्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प और असिस्ट करता है। सपोज आपका एक स्टार्टअप है, आपने एक कंपनी बनाई है, और आपका एक स्टार्टअप है और आपने कंपनी बनाई है, और आपने अभी अभी 2 साल 5 साल लगाकर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो आप जिसको बेचना चाहते हो और जिसका जिसका यूज करना चाहते हो। तो स्टार्टअप्स को भी पेटेंट बहुत हेल्प करता है सस्टेन करने में। आप कोई भी एक टेक्नोलॉजी बनाकर आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते हो। सेमी, रिया, व्हाट इज दिस सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन? Acha, might be that was copied from somewhere, but that is not a part of our legal studies, intellectual property law. Semiconductor circuit is must be a part of physics. Fine. Meet you all in next class. I have given you enough examples for patent, copyright, and trademark. And someone asked that can I suggest some book? So not very sure that any book is not any private like any publishing like university must prescribe you with certain content and book, I hope. And till then, I will make sure that PTs are like reaching out to you. And I do not think it is much more like necessary to consult anything at this point of time. But I will have to like take some consent. Let me. I do not. Let me like collect some concrete information regarding the study, books for study. I will respond the same in the very next class. Fine. Any questions in case if you have at this point of time, you can directly write in the chat box. Someone asks for the very sixth slide. I have already displayed that sixth slide. Correct?